Hare Krishna. Hare Krishna, welcome you all in your congregation on Srimad Bhagavatam of this morning on 15th December 2023. Before Mangalacharan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Givaradhari Jaya Gopijana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Manachari Yamuna Tera Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Givaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Manachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva हरिनाम संकीर्तन नमो सब की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरे जोर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। आप सबका स्वागत। रसिक प्रभु और भक्ति माता को सबको प्रणाम। आज हम सुनेंगे मैत्रेय मुनि और भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट। ध्रुव ने प्रार्थना की। प्रार्थना का मतलब होता है दीनता दिखाना। अपनी दीनता दिखाइए और कहा, हे प्रभु तुम कहां और मैं कहां। श्रीमद् भागवता में बहुत प्रचलित है। कुंती प्रियर हो, विष्णु स्तुति हो, गजेंद्र प्रियर हो, और अब आपने देखा ध्रुव की जो प्रार्थना है, दीनता दिखाना प्रार्थना। और देखिए भगवान उन वचनों से कैसे खुश हुए। आगे देखते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच अथा विष्णुतम् एवं वै सतसंकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदम् अब्रवीत्। मैत्रेय उवाच अथा विष्णुतम् एवं वै सतसंकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदम् अब्रवीत्। मैत्रेय उवाच अथा विष्णुतम् एवं वै सतसंकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्दितम् अब्रवीत्। सिनोनियम पढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय said, अथा then Avishtutum being worshipped, evam thus, way certainly, Satasankalpena by through Maharaj who had only good desire in his heart. Dhimata, because he was very intelligent. Bhrityanuraktaha, very favorably disposed towards devotees. Bhagavan, the Supreme Personal Godhead. Pratinandheya, having congratulated him. Idam, this, Abravit said. Translation by His Divine Grace. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, when through Maharaja, who had good intentions in his heart, finished his prayer, the Supreme Lord, the Personal Godhead, who is very kind to his devotees and servant, congratulated him, speaking as follows. Om Ajnanatimirandasya Jnananjan Salakaya Chaksmritameenam Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manovishnava Sthapitamena Bhutale Swayam Rupakatamayam Dadati Supadantikam Bandeyam Sri Guru Shridhapadakamalam Sri Gurun Vaishnavamam Cha Sri Rupam Sagradatam Sagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parjan Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhan Vitam Cha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त जन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावत कृष्ण विजय पताका समनिति नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारणे
नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की कथा अविरल चल रही है। अभी संवाद है मैत्रेय मुनि और विदुर जी का। श्रीमद् भागवता में जो ये 4th कांटो है, 3rd कांटो से शुरू होता है, 4th कांटो तक मैत्रेय और विदुर का संवाद है। और वो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने कैसे प्रार्थना की, दीनता के साथ प्रार्थना की। और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, he had good intention in his heart। कभी कभी हमारे मुंह में जो जबान आती है, हमारे दिल में वो बात नहीं होती है। Sometimes we have no good intention। तो कहते हैं कि ध्रुव महाराज who had good intention in his heart finished his prayers। अपनी उन्होंने जो प्रार्थना थी, और कैसे प्रार्थना की आगे हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। भगवान मुझे वर दीजिए। कौन सा वर? मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई वर न मिले। भौतिक चीज नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और मुझे तो मणि मिली है, मुझे वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। तो जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, भगवान गदगद हो गए। भगवान अपने भक्तों का जब उनका इंटेंशन देखते हैं, उनके मन की बात को समझते हैं, उनके हृदय में बसे हुए वो जो है समझ आते हैं, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। हम सब कहते हैं भक्ति करना बड़ा मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। अरे श्रीमद् भागवतम हमारे सामने पड़ी है, क्या करना है? श्रीमद् भागवतम के पेजों को तो खोलना है। इसमें कौन सी परेशानी है? कौन सा दर्द हो जाएगा? कौन सी हमारी शक्ति छीन हो जाएगी? उसको पढ़ना ही तो है। क्या आपको पढ़ना नहीं आता? कल जैसे कथा में था, जिसको पढ़ना नहीं आता तो सुन तो सकते हैं। तो इस प्रकार हम सब कहते हैं भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी आसान कोई चीज और हो ही नहीं सकती है। गुरु महाराज एक माला दे दी, वो माला आपके जीवन भर चलेगी। क्या प्रॉब्लम है भाई? कौन से आपको हर सुबह जो है 16 दाने माला बनानी है, उनको पिरोना है, उनको करना है? कहाँ है ऐसा? हम जबरदस्ती कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। तो कहते हैं गुड इंटेंशन है। Who was very kind to his devotees। Now बोलते ना अल्लाह करीम, सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम, करीम है, बहुत ही दयालु है। दयालु अपने भक्तों के लिए और अपने अभक्तों के लिए, सब जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए भगवान तो दयालु हैं। हमको काम करके अपनी जीविका जुटानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को काम ही नहीं करना पड़ता है, बिना उसके उनकी आजीविका मिल जाती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हम जबरदस्ती, अरे बहुत मुश्किल है प्रभु, ये है वो है, मन नहीं लगता है। भगवान ने कहा ना, अभ्यास है ना तो कौन थे वैराग्य न रहते। हम कहते नहीं साहब, मन तो नहीं लगता है। ना अपनी बात मानी, ना गुरु की बात मानी, ना शिक्षक गुरु की बात मानी, ना भगवान की बात मानी, किसी की बात नहीं मानी। अपने दिल की बात मानने की बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अपने दिल की बात मान। अभ्यास योग युक्त ना, भगवान ने कह दिया। वो कल शायद हमने बात कही थी कि ये नहीं लगता है, नहीं लगता है। यहां देखिए विदुर बैठे हैं, अपने गुरु के सामने बैठे हैं, विदुर के सामने बैठे हैं, और उनका इंटेंशन देकर के विदुर भी खुश हो रहे हैं। और पीछे जाएं तो परीक्षित महाराज भी बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, एकाग्रता से अपने गुरु की बात सुन रहे हैं। और पीछे जाइए
88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके स्तुता को सुन रहे हैं एकाग्रता से, और हम एकाग्रता से सुनते भी नहीं है। ये अपनी उंगलियों को दबा रहे होंगे, ये कान को खुजला रहे होंगे, ये पैरों को हिला रहे होंगे, कहाँ एकाग्रता है। तस्माद एकेन मनसा, कहाँ मन हमारा एक है। हमको लोगों को हाथ जोड़ के बुलाना पड़ता है कि भाई आइए आइए आइए, फिर भी लोग आते हैं हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए। तुमने बुलाया तो मैं आया, वरना मेरे तो बहुत काम है, मैं फ्री नहीं हूं प्रभु, अब आपने बुलाया तो मैं आ गया हूं। अब देखिए, ये तो हम सोच रहे हैं कि हमको भगवान मिलेंगे, कहाँ मिल पाएंगे। ये एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलते। किसी भी चीज में अगर आप ड्राइविंग करें, आपकी एकाग्रता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। एकाग्र तो हर जगह चाहिए ना, हम हर जगह एकाग्र हैं। माना किसी ने आपसे उधार लिया और उसने आपके उधार के पैसे चुकाए, तो आप एकाग्र से उसको गिनेंगे कि बराबर है कि नहीं है, गिनेंगे बराबर कि बराबर है कि नहीं है। या एटीएम से पैसे निकाले, बराबर गिनते हैं, मशीन पे भरोसा नहीं है। मशीन पता नहीं अगर कम हो तो बराबर गिनते हैं हम, 1 2 3, हाँ हाँ बराबर है। हर जगह एकाग्रता है, लेकिन भक्ति में एकाग्रता है, वेरी कैजुअल। और जितने कैजुअल हम हैं उससे ज्यादा कैजुअल भगवान है। ये हमें अभी तक समझ नहीं आई है, और पता नहीं, हो सकता समझ ना भी आए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान अपने डिवोटियों, अपने भक्तों पे हमेशा प्रश्न करते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड ध्रुवा, यानी जो भी भगवान की भक्ति करेगा भगवान उसको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करेगा। भगवान का अरे बाबा इतने समय निकाल करके मेरी भक्ति की है, यार कितना अच्छा व्यक्ति है, भगवान खुश होते हैं। तो अगर भगवान को खुश करना है तो प्रार्थना कीजिए। अब जिस प्रकार ध्रुव ने प्रार्थना की उस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। श्लोक 6 से लेकर 17 तक हमने प्रार्थना सुनी, न मेरे को याद है न आपको याद हो, किसको याद नहीं हो। लेकिन ये प्रार्थना अगर हम ये न कर, इस तरह न कर पाए, भगवान की प्रार्थना हम हरे कृष्ण महामंत्र से भी कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के मंदिर में जहां कहीं हम हो, एकाग्रता से अगर हम चांद करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसमें भी कुंती प्रिय आ गई, भीष्म स्तुति आ गई, इसमें जो है ध्रुव की प्रार्थना आ गई, इसमें जो है वृतासुर की प्रार्थना आ गई, गजेंद्र की प्रार्थना आ गई, सब इसमें है। तो ध्यान दीजिए, कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बड़े दयालु हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई दयालु नहीं। हम पिछले कई साल से बोल रहे हैं भाई अपना दर्शन दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, कोई सुनता ही नहीं है। हम वीडियो ऑन क्यों करें भाई, क्या जरूरत है, हम सुन तो रहे हैं ना। ठीक है, क्या है कि जो सरल चीज है, अब बोले भक्ति में बड़ी प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है पूर्व भक्ति करने में, कहाँ क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में? लेकिन है भाई, प्रॉब्लम है नहीं होता भाई। तो भगवान को पाने के लिए वो कार्य करना होता है जो वक्ता बोल रहा है। नहीं तो क्या होता है, वक्ता वक्ता है और श्रोता सोता है, और हम सोते 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 हमको जो है भगवान की प्राप्ति हो जाए। किसी किसी को हो भी सकती है, लेकिन हम साधना कर रहे हैं, हमें साधना करनी ही पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। आइए दूसरा श्लोक ले लेते हैं।
श्लोक 19 श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवस्थितं हृदय राजन बालक तत्प्रच्छामि भद्रम ते दुरापम अपि सुब्रतः। मैं सीधा ट्रांसलेशन में जाऊंगा। दो बार नहीं, श्री भगवान उवाच नहीं, ये पहले वाले में बोल दो, दूसरे में जल्दी जल्दी। प्रभा जी कहते हैं द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ये नहीं कहा कि लॉर्ड सेड, नहीं, द पर्सनालिटी। देखो प्रभुपाद जी, आप वो देखिए, आप उनकी धारणा देखिए। हम कहते हैं भगवान, कहते हैं ना, अरे भगवान ने ऐसे, भगवान नहीं, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। श्री भगवान ने कहा, बोलते हैं कृष्ण ने बोला। अरे कृष्ण ने भगवत गीता में बोला ना यार। हम भगवान को इज्जत भी नहीं देते। हमने कहते हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता, नहीं, भगवान कृष्ण ने बोला ना। वो भगवान कृष्ण वैसे बोलते हैं जैसे हमारा पड़ोसी हो। यहां देखिए प्रभुपाद जी के, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, भगवान ने कहा, क्या कहा? माय डियर ध्रुव, सन ऑफ द किंग, you have executed pious vows, and I also know the desire within your heart. Although your desire is very ambitious and very difficult to fulfill, I shall favor you with its fulfillment. All good fortune unto you. वाह वाह वाह, ब्यूटिफुल। आइए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए प्रभुपाद जी के बारे में। The Lord is so merciful to his devotee that he immediately said to Dhruva, let there be all good fortune for you. इसका मतलब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो। लेकिन जब भगवान भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, उसमें भी आध्यात्म जुड़ा होता है। प्रभुपाद जी बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते थे, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, वो बड़े बिजनेसमैन बने। किसके? भक्ति के। आज भी उनकी किताबें हजारों लाखों करोड़ों किताबें दुनिया भर के अलग अलग भाषाओं में प्रिंट हो रहे हैं, बिक रही हैं। इससे बड़ा क्या? प्रभुपाद जी यही चाहते थे ना, मेरा बिजनेस बढ़े। तो बिजनेस जब तक भगवान प्रभुपाद जिंदा रहे, और जिंदा होने के बावजूद भी बिजनेस चल ही रहा है। तो सुनिए, लेट देयर बी ऑल गुड फॉर्च्यून टू यू। तो भगवान ने उनको जो आशीर्वाद दिया। The fact is that Dhruva Maharaja was very much afraid in his mind, for he had aspired after material benefit in discharging his devotional service. ध्रुव महाराज ने बोला, बाप रे बाप, भक्ति तो मैंने की है, लेकिन भौतिक पदार्थों को पाने के लिए की है। तो वो डर गए, बाप रे, मेरे से कितनी, डर क्या गए, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो, कितनी बड़ी गलती मेरे से हो गई कि मैं भगवान से वो मांग रहा हूं जो चीज तुच्छ है, जो तुच्छ चीज है मैं मांग रहा हूं। डर गए अपने दिल में। और भगवान तो सबके हृदय की बात मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो भगवान सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, तुमने जो किया कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जो है फलीभूत कर दूंगा। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, द डिवोशनल सर्विस एंड दिस वाज हैम्परिंग हिम फ्रॉम रीचिंग द स्टेज ऑफ लव। जब वो भौतिक चीज मांग रहे थे, उसमें लव थोड़ी है। हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान, मैं शरीर में बहुत दर्द है, बड़ा कष्ट है, मेरी मदद कीजिए। ये भगवान की भाई ये भक्ति थोड़ी है। हाँ हाँ, भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान से मांग, ये भक्ति थोड़ी है, इसको हम भक्ति नहीं कहते। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इसके बावजूद भी वो कहते हैं कम से कम मेरे सामने खड़ा तो है, मेरे दर पे आया तो है। भगवान सब बलि करते हैं। तो क्या है, इन रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस अतुकी अप्रतिहता, कोई डिजा ना हो। बहुत सारे कहते हैं प्रभु जब मंदिर में तो क्या करें। आपने शायद आप करते होंगे, वृंदावन जाए, कहीं जाए, भगवान के सामने अगर आप कुछ नहीं कह सकते हैं, हाथ जोड़ के ब्रह्म संहिता तो पढ़े, ईश्वर प्रमा कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, इतना तो बोल ही सकते हैं। या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। अरे इतना तो बोल सकते हैं। लेकिन ना वृंदावन जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम भगवान की तब देखते हैं कोई हमारा कोई जान पहचान तो नहीं आया। क्यों? ये बोलने के लिए, अरे हम तो वृंदावन आते रहते हैं भाई। हम लोगों को देखते हैं अपने अहंकार के लिए कि भाई देखो यहां में कौन कौन जानता है, कौन कौन पहचानता है। तो ये भक्ति है लेकिन प्योर भक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ध्रुव महाराज के दिल में ये संकुचता हो गई कि मैंने भक्ति तो की है, लेकिन किसके लिए मैंने भक्ति की है। अगर भगवान को पता चल गया तो भगवान क्या सोचेंगे, भगवान को मालूम है ना। लेकिन फिर भी दिल में संकुचित है। कार्पण्य दोषों बहुत स्वभाव, अपने दोषों को ज्ञान हुआ, और जैसे दोषों को ज्ञान हुआ भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आहा चलो इसको पता चल गया। तो आगे इन भगवद गीता 2.44 इट इज सेड, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयाप्रद चेतसाम, those who are addicted to material pleasure cannot be attracted to devotional service। देखिए ये जो मैं आपको सेंटेंस जो प्रभुपाद ने लिखा है, अगर आप ढंग से सुने और समझे, those who are addicted for material pleasure cannot be attracted to devotional service। अब ये कहानी हमारे ऊपर आती है भाई। We are always attracted in the material pleasure। आज यहां जाना है, वो खाना है, आज समोसे खाना है, ये करना है, material pleasure। तो उससे क्या होगा, we cannot be attracted in devotional service। ये ध्यान दीजिए आप। जिसको मटेरियल प्लेजर चाहिए वो भगवान की प्रेमा भक्ति कर ही नहीं सकता है। लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, कर नहीं सकता है। लेट मी रीड दिस वर्ड अगेन, दोज हु आर एडिक्टेड टू मटेरियल प्लेजर कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टू डिवोशनल सर्विस। देखिए प्रभुपाद जी हमारे मन की बात को समझते हैं, कैसे लिखते हैं। आगे लिखते हैं, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं है। आगे लिखते हैं, इट वॉज ट्रू दैट एट हार्ट ध्रुव महाराजा वांटेड ए किंगडम दैट वुड बी बेटर देन ब्रह्मलोका। दिस वॉज नेचुरल डिजायर फॉर ए क्षत्रिय। He was also only 5 years old, and in his childish way he desired to have the kingdom far greater than his father, great father and great grandfather। और हम भी बच्चे हैं, इसलिए तो हम उल्टी सीधी चीजें मांगते रहते हैं। जन्म देही, धनम देही, बलम देही, विद्या देही। क्यों? हम बालक है ना, हम अबोध हैं। हमारा शरीर चाहे बूढ़ा हो गया हो, लेकिन हमारी मानसिकता बहुत छोटी है। हम छोटी छोटी चीज मांगते हैं। लेकिन मांगना क्या चाहिए? भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति। हम कैसे, हमें कैसे मांगना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रार्थना करनी है और भगवान समझ जाएंगे हमारे दिल की बात भी, हमारे मन की बात भी। और हमारा जो चाइल्डिश फॉर्म है भगवान उसको पूर्ण करके हमें जो है सदाचार देकर भगवान की प्रेमा भक्ति में मिल जाए। चाहने के लिए क्या नहीं। कल हम तो 40 करोड़ की बात कर रहे थे, चाहने में क्या फर्क? हमें कितना चाहिए? और आप बोलेंगे प्रभु जी आपने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है अगर सोचो तो बहुत बड़ा सोचो, छोटी बात मत सोचो, बहुत बड़ा सोचो, ये इतना हो जाए। सोचने में लगता है क्या, लेकिन बड़ा सोचो। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, his father Uttanapad was the son of Manu, and the Manu was the son of Brahma। Dhruva wanted to excel all these great family members।
The Lord knew Dhruva Maharaj's childish ambition, but how was it possible to offer Dhruva a position more exalted than Lord Brahma? Huh? लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो पहला काम हम क्या करते हैं? हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको जो है ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। अरे दिन भर खांसता रहता है, दिन भर वो बोलता रहता है, इसको ओल्ड एज में भेजो, हम पैसे दे रहे हैं ना। तो बोलते हैं मम्मी पापा वहां आपको दोस्त मिलेंगे, आप कार्ड खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ घर में बड़ी मुश्किल है, मेरी बीवी को पसंद नहीं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं, ये मेरे को पसंद नहीं, आप वहां रहो ना। देखिए जैसे लघुता से प्रभुता बढ़ी, प्रभुता से प्रभु, हमारे जो प्रिय है उनको हम अपने से दूर कर देते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि वहां उनका पालन होगा, पोषण होगा। हमारे ब्रजधाम में जो 9th फ्लोर है उसमें भी बुजुर्गों के लिए उन्होंने बना दिया है कि जो कुछ नहीं कर सकता है यहाँ भेज दो, 15-20 हजार रुपये महीना दो, हम उनकी देखभाल करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जैसे हमारे पास धन संपदा आती है, हम अपने सुख सुविधा के लिए, हमारी सुख सुविधा में कोई बाधा ना पड़े, बस इसलिए हम लोगों से दूर हो जाते हैं, लोगों को दूर कर देते। ये घर घर की कहानी है, इसलिए कह रहा हूं। आगे प्रभा जी क्या लिखते हैं? The Lord assured Dhruva Maharaj that Dhruva would be bereft of the Lord's love. भगवान तो सबको प्यार करते हैं, ऐसा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। इतना प्यार हम अपने बच्चों को नहीं कर सकते हैं, पति पत्नी आपस में इतना प्यार नहीं कर सकते हैं, दादी और ग्रैंड चिल्ड्रन इतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना भगवान प्यार करते हैं। He encouraged Dhruva not to be worried that he childishly had material desires, and at the same time had the pure aspiration to be the great devotee. वो भी चाहिए जैसे हमें ना, यहाँ हम फिट होते हैं ना, हमको भक्ति भी चाहिए, हमको धन संपदा भी चाहिए। धन संपदा चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भगवान कहते हैं 40 है, चलो कोई बात। आपने देखा होगा कि भगवान के हेतु की कृपा से आप सबका अब वृंदावन में निवास स्थान हो गया है। ये भगवान की कृपा है। चाहिए हमारी ये भौतिक डिजायर हो, लेकिन भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जिस प्रकार धर्म की डिजायर पूरी की, इनकी भी डिजायर पूरी कर दो, चलो वृंदावन में रहेंगे, वहां की हवा के सांस तो लेंगे। हाँ, तो जो भगवान सब सुनते हैं, सब समझते हैं। ओके, जनरली द लॉर्ड डज नॉट अवॉर्ड a pure devotee material opulence, does not, even though he may desire it. But Dhruva Maharaj's case was different, और हमारा केस भी different है। The Lord knew that he was such a great devotee that in spite of having material opulence, he would never be deviated from love of God. This example illustrates that a highly qualified devotee can have the facility of material enjoyment and at the same time execute love of God. This, however, was a special case for Dhruva Maharaj. प्रभुपाद की इन वाणी को सुनकर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में उन्होंने भगवान को अपना पार्टनर बनाया, बिजनेस में पार्टनर बनाया, और आज भी जैसे बैलेंस शीट पूरी होती है, वो अपना चेक लेकर के डिवोटियों को दे देते हैं, ये भाई भगवान का शेयर है, मैं तो दे ही नहीं सकता, मेरे तो देने की शक्ति है नहीं, मैं तो बहुत कंजूस हूं, लेकिन भाई पार्टनर है तो पार्टनर का तो शेयर देना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमको अपने प्रभुओं के पार्टनर बनाना चाहिए। ये भगवान,
जितनी मेरी तनख्वाह है उसका 0.01% आपके लिए, और वो पैसा इकट्ठा कीजिए। और जब आप जो है किसी धाम में जाते हो तो खुल के पैसा खर्च कीजिए। अब ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा भगवान को समर्पित है, और भगवान को समर्पित करने के लिए दूसरों को देने में क्या प्रॉब्लम। एक बार वृंदावन में कोई कंबल बांट रहा था, तो जिसने कंबल बांटनी थी उसने बोला किसी आदमी को, यार मेरी मदद कर कंबल बांटने के लिए। अब क्योंकि ये तो फ्री का था, इसने सबको पकड़, सबको यूं कंबल दे रहा, चाहे किसको जरूरत हो ना हो, ये ले लो, ये ले लो। बोलते अरे यार जरूरतमंद को देना, अरे वाला क्या फर्क पड़ता है, उसकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना, कंबल तो किसी और की है। अब बांटनी है ना, अरे तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, अपना तो कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो पैसा हमने भगवान के लिए रखा हुआ है, बांटो ना, अपना थोड़ी है, दो किसी को। चाहे आप हरिद्वार में हो, वृंदावन में हो, किसी जगह हो, आप पैसे बांटिए ना, दीजिए आप पैसे, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका पैसा हो तो आप बड़ी कंजूसी करेंगे, इसलिए हर महीने रखो भाई, ये तो मेरे दान पुण्य के लिए, इतना तो दान पुण्य, इतना तो मैं करूंगा, ये इसमें ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, भगवान के लिए कार्य हो। तो इसी प्रकार आज हमारे भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे जे.के. सिंघानिया हो गया, अब बहुत सारे हैं, अब नाम भूल रहा हूं मैं उनका। वृंदावन में वृंदावन में भी हैं। वृंदावन में एक भक्त है, उसने क्या किया, 6 करोड़ रुपए की एफडी बनाई, 6 करोड़ रुपए की एफडी बनाई, और हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। और उस इंटरेस्ट के द्वारा उसने वृंदावन के मंदिर में कहा कि दिन का प्रसाद सबके लिए फ्री है। कोई वृंदावन जाए तो दोपहर का प्रसाद बिल्कुल फ्री है सबके लिए, कितने आ जाए, कोई भी आ जाए। हाँ, शाम के लिए ब्रेकफास्ट का आपको शायद पैसे देने पड़े, लेकिन प्रसाद फ्री है। 6 करोड़ रुपया वो वृंदावन वाला है। डीसीएम वाले हैं उनका अलग है, जो दिल्ली वाले हैं, सबने भगवान को पार्टनर बना के रखा हुआ। आप भी भगवान को पार्टनर बनाइए, मेरी जितनी इनकम है इतना आपका, ये तो हमें खर्च करना ही करना है। अब ये क्या हो गया, भक्ति तो नहीं होगी, लेकिन भगवान बोलेंगे कुछ तो दे रहा है यार, कुछ तो समर्पित कर रहा है। भगवान ने कहा मैं अर्पित मना बुद्धि, अपनी मन बुद्धि हमें दो, हम नहीं दे सकते हैं। अरे लेकिन यार 10 रियाल मैंने तो दे सकते हैं, इतना तो दे सकते हैं, उसी की बदौलत कमा रहे थे तो दे सकते हैं। तो अगर मन बुद्धि ना दे पाए, कम से ये तो दे सकते हैं। भगवान के प्रति हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आइए हम रिस्पॉन्सिबल बने। हमारी भौतिक इच्छाएं तो हैं, जरूर भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा हमारी वो भौतिक इच्छाएं भी आध्यात्मिक इच्छा में बदल जाएंगी भगवान की कृपा से। इसलिए लगे रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी के परपोर्ट को पढ़िए, हर लाइन में आपको इतने मैसेज आपको मिलेंगे, आपका शरीर सिहर जाएगा, आपके शरीर में करंट आ जाएगा। हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभुपाद जी कहते करना चाहिए, कैसे पॉसिबल है। पढ़िए, पठन पाठन कीजिए, अध्ययन अध्यापन कीजिए, और अपने जीवन को सफल बनाए। क्यों? ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, पता नहीं कितनी योनियों के बाद मिले। इसलिए आज ही मौका है, आज के जगह अब भी मौका है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इस वक्त हमारे पास साधन है, समय है, सत्ता है, आज इसका उपयोग करें, कल हो ना हो।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था कल हो न हो। बहुत चली, बहुत चली। क्यों? लोगों ने बोला आज ही देख लो, पता नहीं कल पिक्चर हो ना हो। तो फटाफट देख लो, आज ही देख लो, कल हो ना हो। तो लीजिए, भौतिक बातें हैं, लेकिन हमें न कल हो ना हो, कल मौका मिले ना मिले, आंखों की रोशनी हो ना हो, घर में हमारे पास सारे गजट हैं, हो सकता है चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो आज ही कर लो। हाँ, वो गाना है, हिंदी गाना है, कल का भरोसा क्या। हाँ, आओ चलो हम ले चले, नहीं, कल का भरोसा क्या। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। कभी कभी इन चीजों से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो गाना गा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, भगवत और भागवता में अपना मन लगाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको मैं एक बात बताऊं, विजय माला दास प्रभु जी ने सिर्फ, और हमें भी नहीं बताते,